प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का किया उद्घाटन। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर डाक टिकट और सिक्का किया जारी। कहा, भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है श्री अन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का करेंगे उद्घाटन। 377 करोड़ रुपए की लागत से बनी है भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल जारी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने समर्थकों के साथ अदालती सुनवाई में भाग लेने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकले। अपनी गिरफ्तारी की जताई आशंका। वहीं इमरान के जमान पार्क स्थित निवास में पुलिस घुसी। अमेरिका और यूरोप में गहराते बैंकिंग संकट के बीच स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूबीएस की क्रेडिट स्विस को खरीदने की तैयारी। वहीं पैसिफिक वेस्टर्न बैंक में लोगों ने बड़े पैमाने पर शुरू की पैसे की निकासी। सीधे लिए चलते हैं आपको केरल के एर्नाकुलम, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Allegations of very serious nature, not only on the members of the ruling party but also the person on the top position. Charges have been leveled against him by none other than the accused in the gold smuggling case. Him and his family time and again has been named and shamed by the person who is involved in the gold smuggling. But despite that, he is still at the position, taking the people's mandate for granted. That hunger to be in power or in the position and to misuse that position for personal gains is raising a lot of question marks. And when you are not clean at the top level, you will see the impact down below. And that is, if you look at the Cochin Corporation, look at the Green Tribunal judgment. What does it say? How much is the fine? 100 crores. And what kind of allegations? Who's got the tender? Who is the beneficiary? Is he related to the political party in power? If yes, what was the compulsion to give it to him? Why advance amount has been given? Has any work happened on the ground? Is there a fire for the last 14 days? If you look at the detailed judgment, you will see it raises a lot of question marks. But is the ruling party willing to come forward and answer these questions? Because in Kerala, LDF, UDF, one and the same thing. Who is number one and who is number two? As far as the corruption is concerned also, and the tender is concerned. One after another tender has been given, and what kind of benefits has been taken out of it? Will they answer these questions? Will they answer these queries? And especially after Swapna Suresh making the direct allegations against the Chief Minister and his family,
What else is left? We can take some questions, I think, otherwise. Yes. Now the floor is open for, especially for the journalists, you can ask questions. സർക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം. അതിന് കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യം തോന്നുന്നു. चलिए, थैंक यू. पूछना कुछ? I still couldn't understand your question. Now, after your speech there at the Madhupalli Center, the subsequent speakers attacked you. That is what he said. See, look at the state of Kerala, where TV channels or a media house office is ransacked, people are thrashed and threatened for not towing the line of the ruling party. Is that the freedom? Is that the freedom for the press? If not, they have to answer these questions. And that is why I raised the issue of emergency also. Because people involved in that who talk about democracy today, they were the one who imposed Article 356. And when they invoked Article 356, in Kerala, in 1957, for the first time, a non-Congress government, a full majority of the Communist Party government was formed here. But Congress could not accept that, and that is how they invoked the Article 356. And not only then, 93 times they did it in the past. They know how to overthrow the governments which are duly elected by the people. Left might have forgotten this, but not the country. All I can say, he is missing from the Lok Sabha. For the last session he wasn't there. I hope he was here. No, he is not here. Was he? No, he is not here. He is not in Wayanad, he is not in Delhi, but he is on the foreign soil, spreading lies against the country. Making false allegation. You can hate someone, an individual, but you can't hate India. Words were happening in the parliament yesterday on Rahul Gandhi's remarks. And Congress came back with a past remark against the Prime Minister, against the Gandhi family. What's your take? What remark? Prime Minister has made a remark. What remark he has made? They have not mentioned it in the parliament. No. What remark? Because if I have to reply, I should know what remark he has made. It's related to the foreign. See, Rahul ji has said a lot of things on the foreign soil which were not true, far away from the truth. Where he said he has arrested many times. Many times where and when? For what? So on what specific question do you want me to answer? Congress is mainly alleging that BJP is trying to expel
See what he said even after coming back. You first give me the opportunity to speak in the parliament. You can't be above parliament and the country. You may be born in you are a privileged one, but that doesn't give you the privilege to be above parliament, above the rules of the parliament and above the country. House is run as the rules and procedure of the parliament. Speaker has the power to give the instructions and give orders. So he can't decide what is to be done in the house. And if you are in the well of the house, there is no mic in the well. I hope you understand. If the opposition is in the well of the house, there is no mic in the well. You have to be on your seat. House has to be in order. Thank you. सीधा प्रसारण आप केरल के एर्नाकुलम से देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने खास तौर पर जो सत्ताधारी एलडीएफ है, कहा कि वो कई सवालों में घिरी हुई है, भ्रष्टाचार के कई सवालों में घिरी हुई है। आरोपी मंत्रियों को उन्होंने सरकार में बना रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे एलडीएफ हो या फिर विपक्ष की यूडीएफ, केरल में दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। तो ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। यस मैच में डूब गए और हैंड वॉश भूल गए। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने समर्थकों के साथ अदालती सुनवाई में भाग लेने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकल तो गए हैं, लेकिन इमरान ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई है। इमरान खान ने कहा कि सभी मामलों में जमानत मिलने के बावजूद पीडीएम सरकार मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार के दुर्भावनापूर्ण इरादों को जानने के बावजूद मैं इस्लामाबाद और अदालत जा रहा हूं, क्योंकि मैं कानून के शासन में विश्वास करता हूं। वहीं इमरान के लाहौर के जमान पार्क स्थित निवास में पुलिस के घुसने की खबर है। इस खबर से जुड़े तमाम मुद्दों पर अधिक जानकारी के लिए बात कर रहे हैं हम अपने संवाददाता मलिक अख्तर से, जो हमसे जुड़ चुके हैं और बहुत ही करीबी नजर रखते हैं पाकिस्तान से जुड़ी खबरों पर। मलिक, इमरान खान ने काफी कार्ड खेला। हमने देखा कि अपने समर्थकों को घर के बाहर जमा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि उनको कानून के आगे झुकना पड़ा, इसीलिए वो अदालत में पेश होने के लिए जा रहे हैं। और कई दिनों के जद्दोजहद के बाद आखिरकार इमरान खान अदालत के कटघरे में होंगे। मलिक, इमरान खान ने अदालत में पेशी से बचने के लिए जितना रेजिस्ट किया है, उसकी मिसाल पाकिस्तान की राजनीति में बहुत कम मिलती है। न सिर्फ ये कि उन्होंने बार बार जो समन थे उनको अनदेखा किया और वह अदालतों में नहीं गए, अदालतें घंटों घंटों उनका इंतज़ार करती रहीं, बल्कि जब नॉन बेलेबल वारंट उनके जारी हो गए और पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए 15 मार्च को पहुंची, तो उनके समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया और इतना भीषण हमला किया कि 65 पुलिस वाले उसमें घायल हुए। और इसके साथ साथ वहां से पेट्रोल बम चलाए गए, फायरिंग की गई।
एक ज़बरदस्त हंगामा चलता रहा और उसके बाद फिर जब दबाव बढ़ा तो आखिरकार उन्हें आज इस्लामाबाद की कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचना पड़ रहा है और वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उधर लाहौर में जो उनका घर है वहां पर पंजाब पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। उनके घर का दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर घुसी है, घर की तलाशी ली जा रही है और ये सारी कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि इमरान खान के जो समर्थक उनके घर के आसपास इकट्ठे हैं उनके बारे में ये सूचना है कि उसमें बहुत सारे लोग वो हैं जिनका संबंध तालिबान से है और तालिबान जैसे दूसरे चरमपंथी संगठन हैं उनके साथ है और वो इमरान खान के साथ इस वक्त उनके समर्थन में खड़े हैं और पुलिस के खिलाफ जो हिंसक कार्रवाइयां हैं उनमें शामिल हैं। इसीलिए ये खबर भी आई है कि जब पुलिस अंदर घुसी तो वहां पर फायरिंग भी हुई है, यानी इमरान खान के समर्थकों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई है जिसमें एक पुलिस वाला घायल हुआ है। तो इस वक्त दोनों ही शहरों में लाहौर में और इस्लामाबाद में जबरदस्त हलचल है और पीटीआई ये मान रही है और बहुत सारे लोग ये आशंका जता रहे हैं कि शायद इमरान खान को अदालत की पेशी से पहले या उसके बाद अरेस्ट किया जा सकता है। मलिक, एक बात आपके जरिए जरूर समझना चाहेंगे। आपने पाकिस्तान की जो वहां पर जो सियासी रवायत रही है उसकी चर्चा की। मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में हमने पहले भी देखे हैं कि चाहे राजनेता हों या फिर सेना से जुड़े लोग जो सत्ता में रहते हैं वो जब सत्ता से हटते हैं तो या तो दुबई या लंदन या कहीं और जाने के लिए, फरार होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान की ऐसी कौन सी ताकत है मलिक जिसकी वजह से इमरान खान न सिर्फ पाकिस्तान में टिके हुए हैं बल्कि शहबाज शरीफ सरकार, सेना, सभी को वो खुली चुनौती पेश करते हैं? देखिए, इमरान खान की इस ताकत के पीछे दो तीन चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान, चूंकि ये बात अब स्थापित हो चुकी है कि उन्हें पाकिस्तान की फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट वहाँ के राजनीति में लाई और उनको 2018 के चुनाव में कामयाब कराया। उनको लाने के लिए और स्थापित करने के लिए पाकिस्तान की पूरी इस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ के सभी जो संस्थान हैं उनके साथ मिलके एक नैरेटिव तैयार किया जिसमें जो पाकिस्तान की दोनों बड़ी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी, उन दोनों के खिलाफ ये एक तरह से माहौल बनाया गया कि ये दोनों चोर हैं और एकमात्र मसीहा जो इस वक्त पाकिस्तान को बचा सकता है वो इमरान खान है। इस पूरे नैरेटिव को इतनी कंसिस्टेंसी के साथ चलाया गया कि उसने ज़मीन पर असर किया और लोगों में उसकी एक रेजोनेंस सुनी गई है। उसके साथ साथ जिस तरह से उनको सत्ता से हटाया गया वो ऑप्टिक्स भी कुछ ऐसी थी और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने उसको एक नैरेटिव में बदला, उससे ऐसा लगा कि अमेरिका के सहयोग से शायद उनकी सरकार को हटाया गया है और वो शायद कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो इस नैरेटिव को जिस अच्छे ढंग से वो लेकर चले हैं उसकी वजह से हमने देखा कि उनके जो सपोर्ट है वो कंसोलिडेट हुई है और उनकी जो जमीन पर इतनी ज्यादा सपोर्ट है उसी की वजह से एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ एक सीमा से आगे जाकर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। पहले सवाल के जवाब में जो आपने जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं इमरान खान के पीछे जो वहाँ के कुछ आतंकवादी संगठन हैं, तालिबान से जुड़े हुए संगठन, चाहे वो तहरीक तालिबान हो या जो भी संगठन उनके पीछे हैं, वो भी क्या इमरान खान को एक कहीं ना कहीं एक ताकत उससे भी मिल रही है क्या? देखिए, ताकत इस तरह से मिल रही है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसने खुली धमकी दे रखी है कि वो पाकिस्तान के जो प्रमुख राजनेता हैं उनको निशाना बनाएगा और उसने बाकायदा बयान जारी करके नेताओं के नाम तक जारी किए और उसमें दिलचस्प बात यह है कि उसमें इमरान खान का नाम नहीं था। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई और उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़े लोग पाकिस्तान के इलाकों में वापस आए अफगानिस्तान की जेलों से छूट कर, तो उस वक्त इमरान खान सत्ता में थे और उन्होंने न सिर्फ वहां उन्हें बसाया बल्कि जबरदस्त छूट दी। इसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि तालिबान के जो गुट हैं और उनसे जुड़े हुए जो संगठन हैं उसमें एक हमदर्दी है इमरान खान के लिए। और इमरान खान पर जैसा हम जानते हैं कुछ ही महीने पहले ऐसे ही एक धरना प्रदर्शन मार्च के दौरान हमला हुआ था उनके ऊपर, तो इसको देखते हुए अभी जो वो लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, क्या खबरें आ रही हैं कि उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं? देखिए, जिस तरीके से पिछले कई सप्ताह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पूरा नैरेटिव बना रही थी और उसने जिस तरह से माहौल बनाया है और बार बार ये एक्सक्यूज लिया है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है इसलिए वो पेश नहीं हो रहे हैं, तो एक दबाव है जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी और जो राज्य की सरकार है पंजाब की उस पर भी कि इमरान खान के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि उसके बाद शायद वो उसका जवाब देना मुश्किल होगा। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ तय कर लिया है और उनको एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि वो उनके लिए ज्यादा समस्या खड़ी कर रहे हैं, तो इमरान खान के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक कैसर।
जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। कितनी बार समझाया बच्चा पार्टी, हाथ धोकर करो अपनी पार्टी। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर, सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचार बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। ये भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार पहली ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें से पाइपलाइन के बांग्लादेश में निर्मित हिस्से पर लगभग 285 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसे अनुदान सहायता के तहत भारत सरकार ने ही वहन किया है। पाइपलाइन में प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल यानी HSD पहुंचाने की क्षमता है। यह शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगी। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक HSD लाने ले जाने का एक स्थायी, विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण अनुकूल साधन स्थापित होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ाएगा। अब आपके लिए एक बहुत ही जरूरी खबर, पैन कार्ड धारकों के लिए खासतौर पर जरूरी खबर। अगर अभी तक भी आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो ये काम जल्द ही कर लीजिए, क्योंकि पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 नजदीक आती जा रही है। यानी कि आगामी 31 मार्च से पहले ही पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। इस तारीख तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी इस काम को पूरा न करने पर आप अपने पैन का इस्तेमाल तमाम वित्तीय कार्यों में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिना लास्ट डेट का इंतजार किए कृपया आज ही अपने पैन और आधार को लिंक करें और किसी भी तरह की असुविधा और परेशानी से बचें। अगली खबर, बिहार के आकांक्षी जिला खगड़िया ने डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में भी डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया पहले स्थान पर है। खगड़िया की उस उपलब्धि पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जनवरी 2023 में ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया पूरे भारत में पहले स्थान पर है। खगड़िया का कंपोजिट स्कोर जनवरी 2023 में 46.9 रहा है। कृषि और जल संसाधन में भी खगड़िया का स्कोर सुधरकर 21.8 हो गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष का कहना है, लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृत संकल्प होकर काम करने की जरूरत है। जो जनवरी 2023 का जो डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, उसमें जो परसेंटेज इंप्रूवमेंट है उसके टर्म्स में पाया गया है कि खगड़िया जो है देश भर में नंबर 1 स्थान पर रहा है। ये जिले के लिए खुशी की बात है। डेल्टा रैंकिंग जो है बदलती रहती है और हर माह उसमें प्रयास किया जाना होता है। हर माह में देखा जाता है कि परसेंटेज इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कितना, उसके आधार पर रैंकिंग तय की जाए। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में खगड़िया का स्कोर सुधरकर 58.9 हो गया है। खगड़िया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर कृष्ण कुमार का कहना है कि जिले में सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की मुफ्त में जांच करने के साथ ही उन्हें दवा भी दी जाती है। से गर्भवती महिला का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद बीपी, शुगर, HIV, यूरिन में विभिन्न तरह के जो है जांच किए जाते हैं। हम लोगों के तरफ से जो है आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट
इत्यादि सभी तरह की जो है दवाएं इत्यादि जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में खगड़िया का स्कोर 46.5 पर स्थिर है। मध्य विद्यालय बछौता के प्रिंसिपल निर्मलेश कुमार का कहना है कि स्कूलों में पीएम पोषण शक्ति योजना के तहत पोषण युक्त आहार दिए जाने से कुपोषण की समस्या खत्म हुई है। यहाँ सभी जितने सरकारी स्कूल में मैक्सिमम 90% गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो उनको घर से तो कुछ अच्छा जरूर खाना मिलता है, कुछ कुपोषण उन लोग का दूर होता है। वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में खगड़िया जिले का प्रदर्शन थोड़ा खराब रहा है। हालांकि आधारभूत संरचना के क्षेत्र में प्रदर्शन में सुधार हुआ है। साल 2018 में लागू आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिले का विकास करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कई योजनाएं चलाते हैं, जिससे जिले के साथ ही वहां रहने वाले स्थानीय लोगों का समुचित विकास किया जा सके। खगड़िया से शशि भूषण प्रसाद महतो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर खेल के मैदान से भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी आज ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता में सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। प्रतियोगिता के महिला युगल वर्ग त्रिशा और गायत्री की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में बैक हाना और ली सो ही की कोरियाई जोड़ी से भिड़ेगी। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की ली वेन मेई और लियू जुआन की जोड़ी से था। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-14 से जीता। दूसरे गेम में चीन की जोड़ी ने 21-18 से जीत दर्ज की। तीसरे गेम में फिर से भारतीय जोड़ी ने 21-12 से जीत दर्ज की और मैच को अपने नाम कर लिया। और भारत के शीर्ष युगल टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना इंडियन वेल्स मास्टर्स के पुरुष युगल के फाइनल में स्थान उन्होंने बना लिया है। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्दन की जोड़ी ने सेमीफाइनल में अमेरिका के जॉन इशनर और जैक सॉक की जोड़ी को हराने में सफलता पाई। बोपन्ना और एब्दन की जोड़ी ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में अमेरिकी जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराने में सफलता पाई। अब फाइनल में बोपन्ना और मैथ्यू का सामना ब्रिटेन के नील स्कूप्सकी और नीदरलैंड्स के वेस्ली कुलहोफ की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। बोपन्ना के पास अब साल का पहला मास्टर्स खिताब जीतने का अच्छा मौका है। बोपन्ना और मैथ्यू दोनों की जोड़ी ने इस साल फरवरी में 3 एटीपी टूर्नामेंट का डबल्स फाइनल खेला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।